Good morning students. Today we will start from here. Part of second of poem, Nothing of Beauty. For simple sheep and such are daffodils, with the green world they live in, and clear rills that for themselves are cooling covered, make against the hot season the mid-forest break rich with sprinkling of fair musk rose blooms, and such too is grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead, and all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heavens brink. Now, in this stanza, poet wants to tell about the environment of nature, because of you know very well that Keats is a nature poet and he has described here about the natural things. So now natural objects are described here. One question can be asked there, just as sheep, daffodils, green world and clear rills. These are the is described fountain of fountain. These are natural words, musk rose, and these are things which are described there in the beautiful and natural object in the poem. For simple sheep and such a daffodils. Now the poet is describing about the daffodils. नरगिस के फूल के बारे में वो डिस्क्राइब करता है, शीप के बारे में डिस्क्राइब करता है, सारी चीजों के बारे में डिस्क्राइब करता है वो कि these objects are very beautiful. ओके कि जितने भी ये ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे बहुत सुंदर हैं, बहुत ब्यूटीफुल हैं, एंड ग्रीन वर्ल्ड, एंड दे आर लिविंग इन देयर ग्रीन वर्ल्ड. ग्रीन वर्ल्ड, it means greenery is must for us. In the same manner, green world is related with the prosperity and the environment, greenery and wood area and everything is there used here in green world. They live in and clear rills, and they also like clear rills. What is clear rills? Rills it means ये आपकी स्ट्रीम होती है, वेव्स होती है, नहर होती है, उनको बोलते हैं क्लियर रिल्स, रिल्स बोलते हैं. एंड दैट फॉर themselves are cooling covered. यानी now poet is saying here about the environment which is nearby the forest and which is nearby the rills or streams. Against the hot season, it means it works against the hot season. When environment in the summer season we feel very happy in the area where a lot of trees and lot of greenery and nearby is a stream also, then we feel very happy because of the environment of nearby area will become cool and we feel happy on that time. Now it is work against the hot season. Okay, and the mid, what does work against what does work against the hot season? बताइए, what does work against the hot season? जल्दी बताइए, make haste. Anybody can tell? Okay. Ma'am, clear water of rills which flowing And nourish the bushes. it means the environment of the wood area
और या फिर फॉरेस्ट एरिया, environment of wood area and clear rills. Both give birth against the hot season. समझ में आ गया हो तो नोट डाउन कर लेना, और नहीं करना हो तो इट्स अपॉन यू. Now, the mid forest brake rich with sprinkling of fair musk rose. It means where the stream and rills also, it means rills also nearby, then the musk rose can be seen there. It means rose plants can be bloomed there and these looks very happy. तो what natural objects, एक क्वेश्चन और भी है, या which natural objects are described, which natural objects are described in the second stanza. चलिए बताइए जल्दी से, कौन कौन से नेचुरल ऑब्जेक्ट डिस्क्राइब किए गए हैं इस स्टेंजा के सेकंड स्टेंजा के अंदर? daffodils, grapevines, and Musk rose glooms. Green world, it means first of all you will write sheep, daffodils, green world and clear rills. उसके अलावा musk rose, Musk rose. yes, and fountain. Okay, is described here, are described here. Okay, next you should write these questions in your copy also. Now, and such a too is grandeur of dooms. It means so beautiful, so grandeur is environment there, and it may be feel happy at the day of doom also. यानी इतना सुंदर environment होता है कि उस environment को हम डे ऑफ डूम तक एक्सेप्ट कर सकते हैं. डे ऑफ डूम क्या कहलाता है? तबाही का of doom. Huh? Yes, tell me what is the meaning of day of doom? तबाही का दिन. तबाही का दिन. It means जो विनाश का लास्ट डे होता है, उस दिन भी हम एंजॉयमेंट कर सकते हैं. किससे? इन सब ब्यूटीफुल थिंग्स से. बिकॉज ऑफ दीज ऑल द थिंग्स आर बिलोंग टू नेचर एंड the day of doom is also decided by the nature. देखिए, नेचर से बचा हुआ कुछ भी नहीं है. Everything and everywhere is nature exists in our all activities and everything of the world. वर्ल्ड की सारी ही चीजों के अंदर, सब चीजों के अंदर किसका एग्जिस्टेंस है? प्रकृति का, नेचुरल एग्जिस्टेंस, नेचर का एग्जिस्टेंस है. विदाउट नेचर वी कैन नॉट लिव हियर इन दिस वर्ल्ड. हम बिना नेचर के, प्रकृति के इस संसार में रह भी नहीं पाते. और अगर हमारा अंत निश्चित किया जाता है तो भी किससे निश्चित किया जाता है? नेचर से. ठीक है, तो एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय नेचर. सो दैट इज व्हाई द पोएट वांट्स टू डिस्क्राइब हियर दैट वी शुड फील हैप्पी देयर in the nearby area or nearby environment of natural object, and it may be possible that day of doom can come there or exist there, but we will be happy on that time because of all natural environment give us happiness and prosperity also. So now, next thing we have imagined for the mighty dead. Okay, we can imagine also for the mighty dead because of death is very mighty and it cannot distinct with any person. राजा भी मरेगा और रंक भी मरेगा. So that is why death is ultimate truth of life. ठीक है, ये जो हमारा जीवन का सत्य है कि it will come to all people, चाहे वो किंग हो और चाहे वो बैगर हो, ये सभी लोगों को आती है क्योंकि ये बहुत माइटी है, शक्तिशाली है. एंड वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड ऑल लवली टेल्स दैट वी हर्ड और रीड. जितने भी ब्यूटीफुल टेल्स हैं, स्टोरीज हैं,
वी हैव हर्ड, जो कि हमने सुनी है, और रीड या फिर हमने पढ़ी है, एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक। ये जो दोनों चीजें हैं वो हमें क्या प्रोवाइड कराती हैं? एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक। किसका? इमोर्टल ड्रिंक का, एम्ब्रोसिया या फिर एलिक्सियर का हमें एक डोज देती हैं। क्या चीजें? जो स्टोरीज है या फिर जो अच्छी बुक्स हैं वो हमें एक मोरल मैसेज देती हैं हमारी लाइफ के लिए, और जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो दैट्स व्हाई द पोएट इज सेइंग हियर, these type of books or these nature poems give us an endless fountain of immortal drink। immortal drink क्या होता है? एम्ब्रोसिया और फिर एलिक्सियर, ओके, यानी अमृत। ऐसा अमृत प्रोवाइड कराती हैं, pouring unto from the heavens brink, जो कि कहाँ से आता है? जो कि उड़ेला जाता है। पोरिंग का मतलब होता है उड़ेलना। कहाँ से? हेवेंस ब्रिंक, हेवेंस की यानी स्वर्ग की बाउंड्री से जो नेचुरल थिंग हमारे पास तक आती है बाय द मीन्स ऑफ नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, यानी नेचुरल ऑब्जेक्ट्स आर डिस्क्राइब्ड बाय द नेचर पोएट, एंड दैट इज व्हाई ही इज सेइंग हियर कि जो बुक हम पढ़ते हैं नेचर से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड जो कि हमें मोरल मैसेज प्रोवाइड कराती हैं, वो क्या है हमारे लिए? इमोर्टल ड्रिंक की तरह है। इमोर्टल ड्रिंक, एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, यानी एम्ब्रोसिया अमृत का, एलिक्सियर का एक ऐसा घूंट प्रोवाइड कराती हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होता है, या जो कि हमारे डेथ को भी नकार देता है। इट मीन्स हम बरीड कब होते हैं? जब हम लिंक्ड होते हैं मेटलिस्टिक वर्ल्ड से, ओके, कि हमारे पास ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये सारी चीजें हमारे कब दिमाग में आती हैं? जब हम मेटलिस्टिक पीपल होते हैं, और तब हम एवरीथिंग को क्या करना चाहते हैं? कलेक्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में और उससे एंजॉय करना चाहते हैं। लेकिन जब हम नेचुरल ऑब्जेक्ट्स में इंक्लूड हो जाते हैं, इट मींस नेचर से हमें इंटरेस्ट आने लग जाता है, देन जितने भी ऑब्जेक्ट हैं इस वर्ल्ड के वो हमारे लिए यूजलेस हो जाते हैं, और हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? नेचर, क्योंकि नेचर के बिना कुछ भी एग्जिस्टेंस नहीं है किसी भी ह्यूमन बींग्स की। सो दैट इज व्हाई नेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। और यही बात उसने कहा है कि नेचर से रिलेटेड जो पोयम है या फिर जो भी स्टोरी है जो हमें मोरल मैसेज देती हैं, वो क्या है? वो हमारे लिए उस अमृत की तरह है जो कि हेवेंस के ब्रिंक से, बाउंड्री से हमारे तक आता है। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? हेलो पिंकी, इज इट क्लियर बेटा? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So now all the things are clear to you. One or two questions I will give you here also, and you will write in your copy. Now, can we ask this question? शॉर्ट क्वेश्चन में से आ सकता है। Which is mighty everywhere, everywhere या फिर forever, क्या चीज है बताइए? Ma'am, death. Death, yes. Then अगर आपके ऑप्शन में आता है तब भी लिख लेना, और ऐसे आता है तो death is mighty in every object of the, every object भी लिख सकते हैं, या फिर ऑब्जेक्ट के अलावा forever सबसे ज्यादा कौन सी चीज स्ट्रॉन्ग है? वो है आपकी माइटी डेप्थ। ओके, देन सेकंड क्वेश्चन, ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रीड, व्हाट इज लवलीएस्ट ऑब्जेक्ट?
बताइए, व्हाट इज द लवलीस्ट ऑब्जेक्ट? क्या है सबसे अच्छा? Endless fountain of immortal drink. हाँ, एंड फ्रॉम वेयर इट कम? Heavens. हेवेंस ड्रिंक. Heaven's drink. Okay, and how the poet, how does the poet use symbolism? बताइए, किस तरह से पोएट यहाँ पर सिंबोलिज्म यूज कर रहा है? सिंबॉलिक क्या है यहाँ पर? कैन यू टेल द सिंबोलिज्म हियर? विच सिंबोलिज्म इज यूज है? पिंकी, डू यू नो? जल्दी बोलिए, अगर नहीं Ma'am, death. नहीं, बिल्कुल नहीं. जैसे कि अभी आपको बोला ना यहाँ पर कि स्टोरीज जो या टेल्स जो या फिर जो कि पोइट्री होती है वो हमें क्या देती है? क्या देती है? मैसेज, मोरल मैसेज देती है. तो दैट्स व्हाई द पोएट यूज हेयर या कंपेयर हेयर सिंबोलिज्म फॉर किसके लिए? किसके लिए? इमोर्टल ड्रिंक को कहां से मिला हमें? इमोर्टल ड्रिंक हेवंस ड्रिंक. Heaven's drink. ये रहना दीजिए. लेकिन सिंबोलिज्म कैसे यूज हुआ है? बाय द मैसेज ऑफ द बुक्स और स्टोरीज. बाय द मैसेज ऑफ द बुक्स एंड स्टोरीज. क्लियर टू यू? समझ आ गया क्या कहना? Yes. Okay. Yes, ma'am. So now this stanza is completed and the class of time is over. So that is why I want to close. Thank you. Have a nice day, all of you. Ma'am,